Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम जो शुरू कर रहे हैं वो है आपके 6th की NCERT की पॉलिटी का पार्ट। तो इसमें स्टोरी भी है लेकिन वो स्टोरी डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? सो डाइवर्सिटी के बारे में, तो डाइवर्सिटी क्या क्या ऐड करता है। सो जस्ट लाइक समीर एक और समीर दो जो स्टोरी में थे बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their language as well. सबने किया है जिंदगी में अपने। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and ghosts, perhaps, and even people ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more of these stories. People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books, real life, and from their imagination. Some may have lived in forest, close to the animals, and chose to write of their fights and friendship. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. Imagine if you are storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in the place where all the people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of same two animals, for example deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladder. सब लोग what kind of stories do you think they would write? सब लोग तो एक ही स्टोरी लिखेंगे, सिर्फ एक ही स्टोरी। ठीक है ना, इसलिए डाइवर्सिटी हमेशा, चाहे तो आप ये क्या करना चाह रहा है, ये बेसिक आपके नीड से जोड़ना चाह रहा है कि हमारे राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब जो हम लोग काम करते हैं, जो जॉब है आज मार्केट में, ये सब डाइवर्सिटी की वजह से है। डाइवर्सिटी है तो बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। सो डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज. We speak different language. We have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. हमारे तरीके अलग है लेकिन हम सेम चीज ही करते हैं, दैट इज मजा। हम लोग सब लोग मजे करते हैं, अलग अलग तरीके हैं हमारे। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? A little more than 200 years ago, and or long before the train, aeroplane, bus and car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, camels or on foot. Important है earlier transport system के बारे में जानने के लिए। अब इसी के साथ आप लोग वॉर डिसाइड कर सकते हैं पहले के वॉर कैसे होते होंगे। ठीक है, often they went in search of new land, new places to settle in, or for a people to trade with. So नया लैंड, पूरा एक खुद का कंट्री खोज रहे थे, या तो एक नया सिटी या जगह जहां से वो लोग व्यापार या ट्रेड कर पाए, सामान अपना खरीद बेच पाए। कई बार तो वो लोग रिलीजन के लिए जाते थे, लोग रिलीजन, उसके बाद एजुकेशन भी एक पर्पस था, एजुकेशन के लिए भी जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत टाइम तक कभी कभी रह भी जाते थे। मेनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वेर फमाइंस, बहुत लोगों ने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि वहां पे सूखा पड़ चुका था। एंड ड्रॉट,
दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट, खाने के लिए था ही नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा ना. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, देखिए वर्क की खोज, वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज वॉर. कितनी सारी कंडीशंस हैं किसी जगह को छोड़ने के लिए. Sometimes as they began to make their homes in a new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in old ways. So their language, food, कई बार उन्हें नया चीज अडॉप्ट कर, मतलब ये पहले इनका अडॉप्ट करना पड़ता था, कभी कभी वो लोग अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद का ही फॉलो करते थे. तो इसकी वजह से क्या होता था, कल्चर लैंग्वेज ये सब शिफ्ट हो पाता था. सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू. आउट ऑफ, तो ये देखा आपने कैसे बताया कि पूरी डाइवर्सिटी की शुरुआत ही कैसे हुई थी. डाइवर्सिटी की शुरुआत जो होती है वो पीपल के मूवमेंट्स होती है, ये बताने की चाह रहा है बात वो. अब जो भी कंट्री मूवमेंट ऑफ पीपल रोक रहा है वो डाइवर्सिटी रोक रहा है. आउट ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर came something new and different. The history of many places shows us how many different culture influences have helped to shape the life and culture of there. तो आप कहीं इंडिया पे भी कितने सारे जगहों का पूरा आज जो पूरा खिचड़ी मिलता है हमको. Thus the regions became very diverse because of their unique histories. So इससे क्या हो जाता है, बहुत जैसे जेरूसलेम, सर्च करना जेरूसलेम के बारे में, इजराइल का जेरूसलेम. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, people living near the sea is quite different from the living in the mountain areas. कपड़े देखिए, यहाँ पे जो कोस्ट के पास है वो ज़्यादा कपड़े क्लोथ नहीं पहनेंगे, वहीं पे जो माउंटेन पे है वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, अब वो लोग कपड़े पहनेंगे. यहाँ पे इनके खाने में ज़्यादा फैट नहीं होगा, इनके खाने में फैट बहुत होगा क्योंकि इनको सर्वाइव करना है. नॉट ओनली डू पीपल हैव, तो ज्योग्राफी देखिए, एक तो होगा पीपल्स मूवमेंट, अब मूवमेंट के अलग अलग कंडीशन हो गए, दूसरा था ज्योग्राफी भी, और ये ज्योग्राफी अलग अलग मूव करेंगे तो तुझे कैसा एक्सचेंज होगा. अब तीसरी चीज है, not only the people have different clothing and eating habits, but even kind of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people live are tied to their physical surroundings. कितना ज़्यादा लोग एक दूसरे, जैसे कि अगर हमारे सिटीज़ में हम नेट यूज़ कर रहे हैं, अगर नेट यूज़ कर रहे हैं तो बाजू वाला कोई है जो नेट की सर्विस वाली कंपनी में काम करता है, जो राउटर बनाने वाला है, कोई ये कंपनी में, नेट वाली कंपनी में अकाउंटिंग का जॉब करता है. जी हाँ, आप देख सकते हैं अपने आजू बाजू घर में कोई कितना है, कोई समझे नेट नहीं समझे छोला बेचता है, तो छोला वाला आपके बाजू आपकी लोकेलिटी का हो सकता है, वो कैसे छोला आपसे कैसे लिंक्ड है, आप उसका छोला खा रहे हो, वो पैसा कमा रहा है, इतना क्लोजली लिंक्ड है. दिस इज बिकॉज द सिटी सेल्डम, इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. सेल्डम मतलब बहुत रेयरली, ना के बराबर, तो कुछ भी उगाते नहीं है. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय all the food and other goods they need. Let us try to understand what we mean when we say that the historical and geographical factors influence the, देखिए, diversity of region. Golden line guys, golden line. आज से डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है, सीधा यही लिखना कि वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी. वी कैन डू दिस. इसमें मैं एक और चीज़ डाल दूंगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक है, पॉलिटिकल सिनारियो भी कंट्री का डिसाइड करता है. जैसे कि यूएसए अब लोगों को जब भी इसका मन करता है तो बैन कर देता है लोगों के माइग्रेशन को. सो इससे हमेशा उसकी डाइवर्सिटी जो उसकी बुनियाद है उसी पे वो एक्चुअली कुल्हाड़ी मार रहा है. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज लाइक केरला एंड लद्दाख. इंपॉर्टेंट ये पढ़ना पड़ेगा. लद्दाख इज अ डेजर्ट in the mountain in the eastern part of जम्मू कश्मीर में. जैसे कि ये सब आप हमारा जैसे ये हेड देखे होंगे, सो ये जो जोन है ये हमारा लद्दाख का जोन है और उसका कैपिटल है ले. सो लद्दाख के अंदर ले है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल. और डेजर्ट कैसा, कोल्ड डेजर्ट, पूरा बर्फ का है ये.
Very little agriculture is possible here since region does not receive any rain and is converted in snow for a large part of the year. तो snow ही रहता है. There are very few trees that can grow in the region. क्योंकि देखिए डेजर्ट है, सॉल्टी लैंड भी है, पैन है, तो यहाँ पे प्लांट ग्रो ही नहीं होंगे. ठीक है. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. फिर वो स्टोर करके रखते हैं उसको. पीपल हियर कीप शिप एंड गोट्स. क्योंकि शीप और गोट्स के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो सर्वाइव कर सकते हैं. गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल. पश्मीना वुल बहुत फेमस है, ध्यान रखिए, स्पेशल टाइप का वुल है, इसका डिमांड बहुत रहता है. दिस वुल इज प्राइज एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. देखे बहुत फेमस है. द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम काश्मीर. तो काश्मीर से लोग जाते हैं. तो आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में एक जम्मू जोन है, एक कश्मीर जोन है, एक लद्दाख जोन है. कश्मीर ठंडा है, लद्दाख ठंडा है, जम्मू थोड़ा कूल और हॉट मतलब कूल है लेकिन इन सब से ठंडा, अरे कम ठंडा है. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुमेन इन कश्मीर. तो ऊन लाते हैं लद्दाख से, बुना जाता है कश्मीर में. पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर. बोला था ना माउंटेन वाले फैट ज्यादा खाते हैं. ईच फैमिली ओन्स सम गोट, काउस एंड जोस, या काउस बोलते हैं उसे. Being a desert did not mean the Ladakh did not attract its share of traders. कि वहां पे कोई ट्रेडर्स नहीं जाते थे. It was considered good trade route. समझिए, ये है चाइना, ये है पाकिस्तान और ये इंडिया है. तो यहां से यहां जाना है तो बीच में पड़ता था लद्दाख. तो लद्दाख एक रास्ता बनता था, यहाँ पे आने वाले लोग रहते थे. As it had many passes. passes क्या होता है, माउंटेन के बीच में एक जगह होती है. देखिए माउंटेन पे चढ़ के थोड़ी हो जाता है, तो ये जो passes है, पतले रास्ते, यहाँ से लोग निकलते हैं, तो passes हैं उसको बोलते हैं. Through which the caravans मतलब travelers traveled to what is today called तिब्बत. तो तिब्बत जो चाइना का जोन है, ठीक है ना, वही बताया आपको. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet. ठीक है, तो ये सब कैरी करते थे. बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख. नोट कर लीजिए लद्दाख का इंपॉर्टेंस. हमको लगता है कि हमारे जो लैंड वाले उन्हीं वही सब कुछ है, नहीं. लद्दाख इज कॉल्ड द लिटिल तिब्बत. कल्चर वाइज सेम है एक्चुअली तिब्बत से. आप समझ गए कैसे हुआ रहेगा, क्योंकि लोग हिस्ट्री उनकी रिस्पॉन्सिबल है. फिर से आज जब भी डाइवर्सिटी बोलेंगे हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर. सोचते रहिए, देखिए कितना आप डाइवर्स चीज जानते जा रहे हैं ले लद्दाख के बारे में. लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स. एक बात बता दो गाइस, यहाँ की एक जो लोकल खुद की एक लैंग्वेज थी वो गायब हो रही है. बहुत डरावनी बात है, इनका खुद का स्क्रिप्ट और लैंग्वेज थी वो गायब होती जा रही है. और उस लैंग्वेज का नाम था भोटी और बोधी. और भी लैंग्वेज वहाँ की लोकल, लेकिन आप लोग सर्च कर लेना. लोकल वर्जन ऑफ दी तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर साग आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. यहाँ पे दो रिलीजन है, इस्लाम और बुद्धिज्म. केरला वहीं पे पढ़िए. केरला इज अ स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. अगर ये इंडिया का कोस्ट है तो जो नीचे वाला जोन है, आप लोग देखेंगे ये जो नीचे वाला जोन है ये केरला है. इसे पुराने जमाने में कैलिकट भी बोला जाता था और मालाबार भी. कोस्ट का नाम मालाबार था. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. यहाँ पे कार्डमम हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं, ऐसे हिल्स भी हैं, ठीक है. और एक साइड पे यहाँ पे हिल्स हैं, इस साइड हिल्स हैं और इस साइड वाटर है, अरेबियन सी. मैप चेक कर लेना आप लोग. अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स. इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन. तो आप जो ये सब में जो बोलते हैं कि स्पाइस इंडिया, तो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में सब माउंटेन्स से तो बहुत ज़्यादा ग्रो होता था. 2000 years ago and it is he is credited with, अच्छा पीछे नीचे भी एक, सॉरी,
एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, जूइश एंड अरब। जूइश कौन? जो इजराइल के लोग हैं, जूस, उनको बोलते हैं जूइश। वेर द फर्स्ट टू कम हियर। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मतलब स्टूडेंट, उनका स्टूडेंट जो था थॉमस, सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियर बाय 2000 ईयर अगो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि सर सेंट थॉमस ने सेट किया था क्रिश्चियनिटी इंडिया में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड ही इज क्रिएटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मेनी अरब ट्रेडर्स, इसीलिए शशि थरूर बोलते हैं कि वे बिफोर इंडिया बिकेम मल्टीकल्चरलिज्म, केरला हैड इटसेल्फ अचीव्ड द मल्टीकल्चरलिज्म। तो अरब ट्रेडर्स, देखिए इस्लाम आया, वहां पे जूज आए, अरब आए, अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue। travelogue मतलब चलते थे अपने लिखते कि मैंने क्या देखा, कैसा खाना था, which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। उन्होंने देखा कि यहाँ पे इनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। द पोर्चुगीज, देखिए पोर्चुगीज भी discovered the sea route to India from Europe when the Vasco da Gama landed with this ship here। because of all these various historical influence, historical देखिए, people in Kerala practice different religion as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वहां पे जो गवर्नमेंट का नेचर भी है वो कम्युनिस्ट है। दैट्स द बेस्ट सूटेड थिंग। द फिशिंग नेट्स used here are look exactly like the Chinese fishing nets and are called Chinawala। Even the utensils used for frying is called as the Chinachati। And it is believed that the word Chin could have come from China। The fertile land and the climate are suited to grow rice, and majority of people here eat rice, fish and vegetables। अब इसके बाद की जो स्टोरी है गाइस, ये जो सेकेंड हाफ ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब वहां पे हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। सो गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए प्लीज़ आप हमें, अच्छा ये पहले एक रेस है, ये बोट रेस है, इसका नाम बताना, ये बोट रेस का नाम बताना क्या किसने ऑर्गेनाइज किया था इसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।